Started. Perfect. Okay, so let me run a poll. Swift UI poll 15810. Just a second. Launch. So, guys, please find a poll in your poll or chat section and please vote. Everyone, I want all 33, 34 votes, the whole audience. Okay. So, let me tell you, one is like you haven't started or tried at all SwiftUI. 5 is like very little bit. 8 is like you're very decent in SwiftUI. 10 is like you're pro in SwiftUI. Okay. Now go for it. Please, everyone vote. Everyone. Still 20 votes. 50% जनता भाई कहाँ हो? वोट तो करो भाई. Vote is compulsory. 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 I can check who are not voting. It's not good here. Please involve, participate, and vote. It's better for everyone. Okay. And I can see. I think no one is on your cameras. Cool. So yeah, out of poll, if we see, where is the poll? Just 27 votes. Still, 8 votes are not there. Who 8 people are? They joined and they just left the machine, or what? Or they're not at all listening. It's up to them, but okay, it's fine. So as far as like till now, we got the 27 votes, and out of that, you can say 50% audience is like never tried software kind of. 10 votes for one. We got 13 votes for five is like little bit. So I can say most of the people are not that confident or not even tried SwiftUI. Okay, so cool, and that is what we expecting also. And three people, sorry, yeah, three people vote for the eight, like they are decent, and one is in pro. Can someone raise hand? Like who is that one who vote for 10? Anyone? You can tell hi in the chat or a voice. Yeah, and also three people are in eight. Cool. So I'm ending this poll. Okay, let me end the poll, and I'm sharing one doc with you guys. Just a minute. Cool. Let me know once my doc is visible, once my tab is visible, or my screen is visible. Okay, cool. Thank you. So अभी आते हैं पॉइंट पे. स्विफ्ट भाई नहीं आता, नहीं देखा है, कॉन्फिडेंस नहीं है, नो वरीज. अच्छा, मैं आपको एक दो चीज बता दूं. फर्स्ट ऑफ ऑल, कई लोग शायद मुझे पहली बार सुन रहे हैं, देख रहे हैं. लेट मी क्विकली इंट्रोड्यूस माई सेल्फ. Like Kushal this side, like I'm working since last 8 to 9 years in iOS, and currently I'm working in Abu Dhabi for one of the leading banks in UAE. And also I'm running this iOS labs that started with the new batches, and previously I used to take batches under Intern Labs. I'm also the founder of Intern Labs. It's a tech community initiative. So maybe you have checked out on LinkedIn, so you find all these details. So even I think from previous batch or students are there. Anyone? Aditya, you're there? Aditya or someone? Cool. So yeah, that's a brief about me. And yeah, I'm share my LinkedIn profile. I will share. So even though we normally take brief intro, but today is like around 20 people are joining first time this session, and they previously don't know. So 20 people, if they give intro, it will be too longer. So I'm avoiding that, but we'll do intro part later on. Okay. So let's start with this, and the point is the approach would be different. Okay, it's not a typical, and
As far as I know, we are not college student or school students. Okay, so we are professionals. We are pretty much bit experienced. Here are a mixed people. Like uh, we are like what? Even though some freshers are there, but even though they're passed out college people or in college, or most of the people are like 3 5 year 10 year 12 year experience. Most of the crowd is experienced crowd, few of the people are freshers. But the point is we have basic logic, we have basic understanding of coding, we have also basic understanding of iOS UI kit, right? If I'm not wrong. And most of the people are from iOS background only, few of I think Android or React Native, but the still I'm considering, because this is actually for iOS people, but even you can relate if you haven't tried UI kit yet. But we again in this session or in the coming sessions, we every time we compare with the existing things with SwiftUI, like how we do used to, for example, view did load and view will appear. How in SwiftUI how these things works. Okay, so we'll actually compare again and again with every kind of concept. Either it's a UI thing or API calling or whatever, or even combine or dispatch queue or a syncopate or whatever. Okay, so I hope is that works right. So the point is ki we are not a student. We are not like you can say हम लोग बच्चे नहीं हैं. So we have like maturity, understanding, and logic. So basically, let me tell you my story. So when I came to US, iOS, so I joined my company, which is Raja Software Labs, and it's my first company when I joined in Pune. So first company is in iOS, but it's the third company overall. Previously, I started my career as a backend and a data scientist, and some bit of front end also. So when I came to iOS, and they said, "Ki Kushal, I remember like this one senior is there, Prakhar. He asked me like Kushal, what what you want to like pick, like either Android or iOS." So I said Android because till that time I haven't touched iOS, I haven't experienced iPhone or a Mac, hardly, like very rare. So even I'm not that comfortable with this this whole ecosystem, you can say. So we are like from since bachpan se like we are using Android or Windows. So I'm a core fan of Android, kind of, you can say. I'm talking about in the context of 2017-18 era. Then he said, ki, okay, Kushal, that's fine. But he said, ki, why Android? Because I'm also a bit comfortable with Android phones, Android OS, and also I'm more comfortable with Java because we already know Java in college, right? Normally we do Java coding and all that, but normally no one started iOS. Like nowadays, though, people having MacBooks and they're exploring the things. But in our 10 years back, hardly people have MacBooks in the colleges, and also hardly there are people trying iOS or Swift. So I said this thing. So basically, he said, "Okay, Kushal, that's fine, but the opening or the client requirement is in iOS. So no problem at all. Don't worry at all. But you will get some training, and then you can start working on your. You can start onboarding like on the client project." So मैंने कहा, okay, and then my first client is LinkedIn. So that's a coincidence, but my debut, you can say, of my first project in iOS is a LinkedIn, and also at that time it's a bit complicated code. At that time they have around 70 to 80% code in Objective C, and they started migrating Objective C to Swift. Then again they revert backing at that time. I'm saying again in 2017-18 because the app size is getting increasing so much. That's a different story. But the point is, so how they trained me actually, that I want to explain you. So they started with Objective C training because their company whole 50% audience is working on LinkedIn project. Okay, LinkedIn flagship app I'm saying, which we used. Okay, I worked on my profile section and this my network section screen, you can say. So the point is, they started with Objective C. They give you very basic sessions. They take their leads or their senior people in the company, and Objective C, because Objective C is a bit complex. It's not a typical programming language. So they take some sessions on Objective C, which is
very important and day to day we frequently use those kind of things. And they wrapped up hardly in 6-7 days. Okay, half of our session daily, and they give you some assignment tasks. Whole day you implement and get it reviewed by your senior. And once they ended with Objective C, they started with Swift in the last day. And in the meantime, with Objective C, they also started with some Swift, UI kit. So basic thing like view controller and delegate and like view control lifecycle, table view, collection view. That's it. But the point is, when at the end they are done, and then at the last day they take the Swift, and what one of my senior is there, they just ask Kushal, ki Kushal come and Saurabh, and we 2-3 people batch is there. They will just sit, they open the Swift official doc, they just show us ki, okay, see, Swift is very easy. Because if you know Objective C, Swift is very easy, right? You can agree on that. If someone explored Objective C, right? I think most of the people, so you can thumbs up on that. So Swift obviously very easy, right? If you compare with Objective C. So he said कि भाई अगर Objective C कर लिया तो Swift तो very easy, right? तो उन्होंने सिंपली एक दिन में सिंपली ही गो थ्रू इट. एक दिन में मतलब हार्डली दैट 15-20 मिनट्स आई एम सेइंग, एंड से ओके डन हो गया आपका स्विफ्ट. चलो अभी जो ऑब्जेक्टिव सी में किया है अभी तक इंप्लीमेंट टास्क वगैरह पिछले 6-7 दिनों में, जाओ अभी इसको स्विफ्ट में करो, गो. लाइक दैट दे ट्रेन्ड अस एंड लिटरली दैट्स अ गुड अप्रोच. तो द पॉइंट इज कि हमें थोड़ा कॉन्सेप्चुअली चीजें पता होनी चाहिए, एंड देन यू मैच्योर योरसेल्फ, यू इनफ मैच्योर एक्चुअली. तो खुद से हम लोग थोड़ी चीजें एक्सप्लोर करते हैं एंड वी एक्चुअली लर्न थ्रू प्रैक्टिसिंग. ठीक है, अभी लास्ट सेशन में कौन लोग थे, एक बार हैंड रेज हैंड कर सकते हो, थम्स अप कर सकते हो. तो मैंने एक टास्क असाइनमेंट दिया था, राइट? ऐसे ही इवन वी हैवंट स्टार्टेड SwiftUI, बट मैंने इसलिए दिया था तो एटलीस्ट आप लोगों का हैंड्स ऑन होगी. आई नो मोस्ट ऑफ द पीपल हैवंट tried SwiftUI, but that's not a problem. We are software engineers, right? So we can directly pick anything and we can do, right? तो कार्तिक, हाँ, यू हैव और अदर पीपल, और कहाँ है बाकी लोग लास्ट सेशन वाले? और नहीं, ऋषि इज देयर, या और कौन है बाकी लोग? कूल. तो पॉइंट इज कि अनुज इज, या सो टेल मी वन ऑफ यू, अनुज, कार्तिक, ऋषि, at least because of that task you have tried SwiftUI, you have tried to implement that task, and are you really learned through that journey? Or if I explain one thing, that would be good, or this approach would be good, you just take it up and try it. Now we'll discuss the concepts wise and conceptually, but the point is कि it's a good thing to, like, you know, थोड़ा hands on हो गया, मजा आया करने में, like something like that. Anuj, Karthik, you or Rishi, want to share something, your experience? Hands on is better. Yeah, thanks, Karthik. Exactly. Yeah, want to say something? Anyone? So we started the project. So I was also trying to transform the UI Yes. kit concept into like this. So yeah. Exactly. Yeah. तो देखो, मेन चीज यही कहना चाह रहा हूँ मैं, इसमें जो आपकी लर्निंग होगी ना, वो उसका कोई तोड़ नहीं है भाई. तो हम लोग उसी अप्रोच को फॉलो करने वाले हैं थोड़ा सा. अभी मैं यहाँ बैठ के आपको सामने स्क्रैच से कोड नहीं करूंगा, पहली चीज जानबूझ के. सेकंड थिंग, हम लोग एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट कोड्स को एक्सप्लोर करेंगे. एक और मैं आपको पॉइंट, हाँ, मैं मिस कर दिया, जो मैं आपको मेरी जर्नी बता रहा था वो ट्रेनिंग वाली. तो इनिशियली उन्होंने थोड़ा कॉन्सेप्ट वगैरह से बताया, बट एक्चुअल लर्निंग पता कब हुई? जब एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट पे आप काम करते हो, उसमें ज्यादा सीख जाते हो फटाक से, मतलब जल्दी में ज्यादा सीखोगे कम टाइम में. हाउ, मतलब कैसे? तो my first project LinkedIn, but after a few months they actually got a requirement from other client, which is Vida. Vida is a healthcare kind of startup, like Healthify in India, similar to that in US. तो उनका प्रोजेक्ट मुझे मिला, और वहां पे मेरी एक्चुअल लर्निंग हुई, अगर मैं कहूँ, क्योंकि लिंक्डइन तो मोस्टली ऑब्जेक्टिव सी में था, तो वहां पे इतना मेरे लिए नहीं था और इतना काम भी नहीं था वहां पे. एक्चुअली वो फ्रेमवर्क टीम में डाला था. इट्स लाइक अपग्रेडेशन लाइब्रेरी एंड ऑल दैट थिंग. तो एक्चुअल काम ये सीखने को मिला वीडा में. सो वंस आई मूव टू वीडा, one of my senior is there, I come under him, like, and I started on that project. तो वहां पे स्क्रैच से चीजें मिली करने को. स्क्रीन, ये लिंक्डइन में तो ऑलरेडी चीजें बनी हुई, स्क्रैच से काम नहीं मिल रहा था. सच छोटे मोटे बग्स मिलते थे काइंड ऑफ. वीडा में आई गॉट प्रॉपर होल स्क्रीन, होल फीचर बनाना है आपको और आपकी लीड को मिलके, दो लोगों को.
वहां एक्चुअली मजा आया, ठीक है। और एक और बाद में ऐड हुए थे, तो हम 3 लोग काइंड ऑफ काम कर रहे थे। तो पॉइंट इज कि वहां पे एक्चुअली बिकॉज दैट्स माय, अगेन यू कैन कंसीडर वीडियो इज माय फर्स्ट प्रोजेक्ट बिकॉज लिंक्डइन इज हार्डली आई वर्कड ऑन। तो अगेन आई लेटर बैक टू लिंक्डइन, बट एट दैट टाइम इट्स लाइक माय फर्स्ट प्रोजेक्ट वीडा। तो वीडा में हम लोगों ने फिर जब काम करना शुरू किया, तो पॉइंट इसको करते करते बहुत कुछ सीखे, क्योंकि एग्जिस्टिंग कोड बेस है आपके सामने, यू सी द एग्जिस्टिंग कोड, यू रियलाइज कि यार यहाँ पे कैसे इंप्लीमेंट किया है, राइट। वो देख के बहुत कुछ सीखते हैं। एंड इवन नो आई, अभी हम जब से सेशंस ले रहे हैं, मुझे पता चला कई लोग इस तरह की कंपनीज में काम ही नहीं किया, इस तरह के प्रोजेक्ट्स में काम नहीं किया है, तो उनको वो एक्सपीरियंस, वो लर्निंग मिली ही नहीं एक्चुअली, वो लर्निंग मिस हो गया। पर अभी कोई दिक्कत नहीं, हम लोग यहाँ पे ऐसे प्रोजेक्ट्स लेंगे, एग्जिस्टिंग कोड बेस लेंगे, या हम कंपनी में कैसे काम करते हैं अच्छे प्रोडक्ट बेस कंपनीज के कोड, वो हम एक्सप्लोर करेंगे। पर हाँ, द पॉइंट इज कि जब मैं कर रहा था वीडा पे काम, तो वहां पे एमबीवीएम आरएक्स ये सब यूज हो रहा था। दैट वाज इनिशियली मुझे थोड़ा टफ गया वो, पर इवेंचुअली बहुत स्मूथ हो गई चीजें और बढ़िया से हो गया, मतलब तो वो काफी एक अच्छी खासी लर्निंग हो गई वहाँ पे। तो इस बात से लोग कनेक्ट कर पा रहे हैं। तो एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट्स में कैसा होता है, आपको पता है बेस्ट अप्रोच ऑलरेडी फॉलो हो रही है इधर उधर आपके फीचर्स में, दूसरे फीचर्स में। अब आपको अगर नया फीचर ही बनाना है ना स्क्रैच से, तो आप बाकी फीचर्स का रेफरेंस लेके बना भी लोगे और आप सीख भी जाओगे करते करते। दैट्स द मेन पॉइंट। ट्यूटोरियल ट्रैप में नहीं फंसना है। ट्यूटोरियल ट्रैप इज द वर्स्ट अप्रोच, जो कि नॉर्मली फ्रेशर्स करते हैं, स्टूडेंट्स करते हैं, कॉलेज स्टूडेंट्स वगैरह, जो कि हमें नहीं करना। अब हम स्टूडेंट भी रहे नहीं और उस ट्रैप को फंसना भी नहीं है। वो एक्चुअली किसी के लिए भी रिकमेंडेड नहीं है। 60 घंटे का कोर्स दे दिया उडामी पे, कोर्सेरा पे, यूट्यूब पे एक प्लेलिस्ट उठा ली, और पता नहीं इतने घंटे लगे हुए देख रहे हैं बस, और फिर थोड़ा बहुत कर रहे हैं, उसमें नहीं सीखोगे इतना, पॉइंट ये है। और हम लोग एक्चुअली इस बैच में से कई लोगों को पता है ऑलरेडी, जो पहले से आ रहे हैं, हम लोग एक प्रोजेक्ट बनाने वाले हैं इसमें स्क्रैच से। तो वी ऑलमोस्ट फाइनलाइज द प्रोजेक्ट। तो अभी मैं लेटर ऑन सेशंस में आपको डिटेल शेयर करूंगा। तो हम लोग स्क्रैच से प्रोजेक्ट बनाने वाले हैं इन स्विफ्ट यूआई, जिससे आप लोग उस प्रोजेक्ट में कंट्रीब्यूट भी करो। इट्स ओपन सोर्स प्रोजेक्ट, तो अपना गिटअप भी आप बिल्ड कर लोगे, लिंक्डइन भी बिल्ड कर सकते हो, उसको शोकेस कर सकते हो आप, और आपकी एक हैंड्स ऑन हो जाएगा। और अगेन एग्जिस्टिंग, अगेन क्योंकि आपके कोड रिव्यूज होंगे, सीनियर सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स हम लोग रिव्यू करेंगे आपकी कोड, तो एक फीडबैक भी मिलेगा। और कोड रिव्यू बहुत काम की चीज है, अगेन उससे बहुत लर्निंग मिलती है। जब आपका कोई बहुत सीनियर बंदा है या जो बहुत तोड़ू आदमी है, वो कोई कोड रिव्यू कर रहा है, या जिसका लेवल आपसे हाई है, तो वो आपको बहुत कुछ सीखने को दे देता है, समझ रहे हो, क्योंकि आप उसके थ्रू सीखते हो चीजें। अगर हम एक कमेंट मिलता है और वो कमेंट से हमको ना वो अपनी गलती समझती है, हमको बेस्ट अप्रोच, ऑप्टिमाइज अप्रोच क्या होती है, वी वो अंडरस्टैंड दैट, राइट। तो उस वे से हम लोग चीजें सीखते हैं और फिर वो कमेंट रिजोल्व करते हैं, और उसमें एक और अच्छी बढ़िया लर्निंग हो जाती है। जो अगेन मेरी वीडियो में इनिशियली मुझे कमेंट्स आते थे सीनियर्स के, लेटर ऑन बहुत रेयर हो गए या बहुत कम हो गए, पर द पॉइंट इज कि वो बहुत एक अच्छा फेज होता है, राइट। फिर ऐसे ही मैंने डीलर सॉकेट, उबर, अभी रिसेंटली अडीप, तो अगेन अभी भी कमेंट्स आते हैं, इट्स नॉट लाइक दैट। पर जो कमेंट्स एक बार हो गए, मतलब सेम गलती बार बार रिपीट नहीं करते, राइट। तो वो लर्निंग अच्छी हो जाती है, और हम लोग भी दूसरों का रिव्यू करते हैं, तो हम उनको भी कमेंट देते हैं। तो ये बहुत ही हेल्दी इन्वायरमेंट बन जाता है लर्निंग वाला, अगर आप इसको रिलेट कर पा रहे हो। इस माहौल में आई होप लोगों ने काम किया होगा। कुछ लोगों ने नहीं किया, जो बहुत स्मॉल स्केल कंपनी में एज ए सिंगल डेवलपर काम कर रहे हैं, या जहाँ पे इतनी प्रैक्टिसेस या इतने फॉलो नहीं होती, तो बट मोस्ट ऑफ द केसेस में होती है, जो भी डिसेंट कंपनीज है या डिसेंट क्लाइंट्स में। ठीक है, थैंक शुभम, या तो ओके, आई होप यू आर गेटिंग दिस पॉइंट। अब आते हैं स्विफ्ट यूआई पे भाई। ठीक है, स्विफ्ट यूआई कुछ भी नहीं है, देखो डरने वाला कुछ भी नहीं है इसमें। मैं सबसे पहले, अगेन मैं लेट मी शेयर माय स्क्रीन। स्विफ्ट यूआई का एक हवा बना हुआ है, बहुत इजी चीज है पहली बात। ठीक है, तो डरने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। अगर आप आज तक स्विफ्ट यूआई किट ही कर रहे हैं, तो बहुत इजीली मैप कर लोगे चीजें, कुछ भी नहीं है, इट्स वेरी इजी एक्चुअली। मतलब अगर ऐसे देखोगे तो उसमें कुछ चीजों में ये काफी बेटर भी है, कुछ चीजों में थोड़े प्लस माइनस, हम उस पर आएंगे बाद में। और पहले हम कुछ बेसिक चीजें देखेंगे, ठीक है। तो मैंने एक ऐसी बेसिक सा डॉक रेडी किया है, तो एक्सप्लेन यू फ्यू थिंग्स। ठीक है, दिख रहा है ना डॉक सबको? थम्स अप कर सकते हो, डॉक दिख रहा है? कूल, थैंक्स। कूल। तो अभी स्विफ्ट यूआई जैसा भी ये ऑफिशियल डेफिनेशन है, अब उस पर नहीं जाऊंगा मैं, पर मैं इन शॉर्ट बोलूं तो हम लोग डिक्लेरेटिव कोड होता है ये, काइंड ऑफ। आपका वो इम्पेरेटिव डिक्लेरेटिव वाला चीज है, पर चलो उसमें नहीं घुसेंगे हम लोग। अगेन हमारी इट्स नॉट अबाउट, हमें कोई लैंग्वेज डेफिनेशन नहीं सुनानी किसी को, राइट। हमारा वाइवा भी नहीं है, आपको इंटरव्यूअर ये नहीं पूछेगा कि डेफिनेशन सुनाओ। और अगेन हम लोग हर टॉपिक को उस वे से देख रहे हैं कि इंटरव्यूज भी क्लियर हो जाए और डे टू डे में काम भी कर सके।
तो उस पर्सपेक्टिव से बात करेंगे, ठीक है। तो अब पॉइंट ये है कि इसको हम आगे बढ़ते हैं। डिक्लेरेटिव चीजें, तो आप चीजें पहले डिक्लेयर कर रहे हो, ठीक है, कि कैसे मेरी चीजें दिखने वाली है। तो एग्जांपल के लिए देखो, यहाँ पे एक बहुत बेसिक एग्जांपल लिया है, एक टेस्ट है मेरा, ठीक है, इसको लेबल से मैप कर लो आप यूआई किट का अपना। फिर इसका फॉन्ट क्या होगा वो बता दिया पहले ही, और फोरग्राउंड कलर क्या होगा, जो कि टाइट फॉन्ट बताया, एक टाइटल, एक प्री डिफाइंड फॉन्ट्स है काइंड ऑफ, जैसे अपने यूआई उसमें भी सिस्टम फॉन्ट वगैरह होते थे, राइट, वैसे ही इनका है, ठीक है। तो और फोरग्राउंड कलर है वही जैसे अपना कलर होता था फोर, वैसे ही यहाँ पर ऐसे ही, ठीक है। तो ये आपने डिफाइन कर दिया, ऑलरेडी डिक्लेयर कर दी चीजें। अब जब भी इसको आप यूज करोगे, ये काइंड ऑफ आपको कॉन्फ़िगरेशन करके वो लेबल मिल जाएगा। लेबल यहाँ पे टेक्स्ट है मतलब, ठीक है। और यहाँ पे व्यूज स्ट्रक्ट्स हैं, चलो उस पर आएंगे। मैं आपको पहले कुछ पॉइंट बताना चाह रहा हूँ, एक सेकंड यहाँ पे आ जाओ। सबसे पहले ये इधर, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज अ काइंड ऑफ इक्विवेलेंट कंपोनेंट्स। तो इसको आप जल्दी रिलेट करोगे, क्योंकि हम लोग मोस्टली सब यूआई किट वाले लोग हैं, राइट। तो अब जब आप रिलेट करके इसके बेसिक कोड देखोगे ना, आप खुद ही गूगल कर लो, चैट जीपीटी, कुछ भी कर लो, ठीक है। अगेन मैंने बोला सेल्फ लर्निंग ज्यादा करनी है, खुद से चीजें फिगर आउट करनी है। फिर भी हम थोड़ा गाइड और मेंटरशिप ले रहे हैं यहाँ पे, बट खुद से जितना करोगे अगेन उतना बेटर है आपके लिए, सबके लिए बेटर है, या बेस्ट अप्रोच है। तो अभी इक्वलेंट चीजें देखो आप, यूआई टेबल व्यू हमने बचपन से यूज किया है, बचपन मतलब जब से मैं उसमें, राइट, उसी को लिस्ट वाला चीज आ गया यहाँ पे, ठीक है। इसमें भी काइंड ऑफ सेल बन रहा है, ठीक है। उस सेल को अगेन हम कॉन्फ़िगर करते हैं, जैसे यूआई टेबल व्यू में सेल फॉर रो था, यहाँ पे भी कोई तो चीज हम देखेंगे आगे। पर पॉइंट इसकी सिमिलर कॉन्सेप्ट ही है। इसमें भी आप हाइट वगैरह सेट कर सकते हो, इसमें भी आप सेल को कॉन्फ़िगर कर सकते हो, इसमें भी आप डिड सेलेक्ट रो जो अपना था वो यहाँ पे भी काइंड ऑफ, ठीक है, सिमिलर चीजें। थोड़ा सिंटेक्स बदला है, थोड़ी सी अप्रोच बदली कह सकते हो, पर कॉन्सेप्चुअली सेम है चीजें, ठीक है। सेम फॉर कलेक्शन व्यू में आपको ये लेजी वी ग्रेड और ये एच ग्रेड है, मतलब हॉरिजॉन्टल वर्टिकल, ठीक है। स्क्रॉल व्यू आपका स्क्रॉल व्यू है, लेबल मैंने बोला जैसे कि टेक्स्ट है, टेक्स्ट फील्ड है आपका, ये सारी चीजें हैं, ठीक है। ये आप आराम से, मैं ये डॉक शेयर कर दूंगा आप लोगों को, आप आराम से आगे गो थ्रू करते रहना। बट द पॉइंट इज की आपको सिमिलरिटी बहुत इजीली दिख जाएगी। टेक्स्ट फील्ड का टेक्स्ट फील्ड है, ठीक है, डायरेक्टली। फिर एक पासवर्ड के लिए अलग से इन्होंने दे दिया सिक्योर फील्ड, जो हम लोग यूआई किट में भी करते ही थे, ठीक है। स्विच वगैरह दिए, स्लाइडर का टॉगल, ये सब बना दिए कंपोनेंट्स। नेविगेशन के लिए दी है चीजें, अलर्ट कंट्रोलर्स दे दिए, ठीक है, जो अगेन आप ये सब डे टू डे में बहुत टाइम करते आ रहे हो, राइट। वही चीजें के स्विफ्ट यूआई में इक्विवेलेंट कंपोनेंट्स है, ठीक है। स्टैक व्यू दिया आपका, एच स्टैक, वी स्टैक, हम लोग अभी भी स्टैक व्यू लेते ही थे। स्टोरी बोर्ड में तो ऑप्शन भी आता है हॉरिजॉन्टल स्टैक व्यू, वर्टिकल, काइंड ऑफ एक्सेस ही चेंज करते हो यूआई किट में, राइट। सेम थिंग यहाँ पे, एक्सेस चेंज हो रहा है बस। तो दो अलग अलग कंपोनेंट बना दी, पर अल्टीमेटली सेम है, बस एक्सेस बदल गया काइंड ऑफ, राइट। वैसे ही सेम चीज है। फिर इमेज व्यू का इमेज कर दिया यहाँ पे, सेगमेंट कंट्रोलर को पिकर कर दिया, स्टेपर कर दिया, डेट पिकर, वहाँ यूआई डेट पिकर था, बस यूआई हट गया है। कॉन्सेप्चुअली चीजें सेम है, कुछ नए फीचर भी मिलेंगे, बट बेस सेम है कह रहा हूँ, अगर कॉन्सेप्चुअली समझोगे तो, ठीक है। प्रोग्रेस व्यू है, एक्टिविटी इंडिकेटर बना दिया, ठीक है। ये सब एट्रीब्यूट स्ट्रिंग, एनएस था तो एनएस हट गया, अभी एट्रीब्यूट स्ट्रिंग है सब, क्योंकि नया इंप्लीमेंटेशन है। थोड़ी चीजें एप्पल ने, देखो एक बात को ध्यान रखना, जो यूआई को किस कंटेक्स्ट में लाए हैं, कि चीजें और बेटर करनी है, खराब नहीं करनी, राइट। और एक बात ध्यान रखो, एप्पल, अच्छा, कई लोग उस पर भी आएंगे, मैं उस पर भी बाद में आऊंगा थोड़ा सा ब्रेक के बाद। तो पॉइंट इज की कई लोगों को लगता है कि हाइब्रिड आ गया, कुशल, फ्लटर, रिएक्ट नेटिव, तो फिर हमें क्या वो भी सीखना चाहिए क्या, या क्या करना चाहिए। और अभी तो रिसेंट न्यूज आई वो एंड्रॉइड में स्विफ्ट वाला चीज, चलो उस पर भी अगेन वो बहुत रिसेंटली जस्ट लॉन्च, तो उस पर भी बात नहीं करेंगे, नॉट राइट टाइम टू डिस्कस। बट मैं बात कर रहा हूँ हाइब्रिड जो मार्केट में चल रहा है, फ्लटर और रिएक्ट नेटिव। तो पता है मुझे इंट्यूशंस ये आए थे पहले भी कि ऐसा कुछ एप्पल शायद करेगा, लिटरली कर दिया उन्होंने। बट द पॉइंट इज कि आपको क्या लगता है, एप्पल, गूगल, ये सबको नहीं पता क्या इनकी नेटिव कहाँ चल रहा है, क्या हो रहा है मार्केट में। इनको अपन से ज्यादा इनसाइट्स एक्चुअली। जब भी आप कोई ऐप सबमिट करते हो, तो इनको तो पता है कि आपने किस कोड बेस में बनाया, क्या किया है, तो रिवर्स इंजीनियरिंग भी कर सकते हैं, सब कुछ होता है, ठीक है। तो दे नो ईच एंड एवरीथिंग, उनको आपका इन एंड आउट सारा पता है, जितना भी कोड डेली, कितना लाखों मिलियंस लाइंस ऑफ कोड सबमिट होता है, इतनी सारी ऐप्स सबमिट होती हैं, ठीक है। फिर वो रिव्यू के लिए जाती है, एंड्रॉइड आईओएस सब में, दोनों में कह रहा हूँ मैं। तो इनको पता है इन एंड आउट एवरीथिंग, दे हैव प्योर एनालिटिक्स ऑफ ऑल एवरीथिंग। तो एक बात ध्यान रखना, मैं इन शॉर्ट में कहना चाह रहा हूँ, एप्पल कंपनी की अगर मैं बात करूं, एप्पल ने स्विफ्ट भी तब बनाई थी इसलिए कि डेवलपर्स को हम एक बूस्ट दे सके। जब 2014 तक अराउंड ऑब्जेक्टिव सी थी ना, उसी में स्विफ्ट आया, राइट, आपका अराउंड 2014-15।
उसके पहले ऑब्जेक्टिव सी थी, ऑब्जेक्टिव सी का आप कोड देख ही सकते हो, अभी आप कंपेयर कर लेना, कभी सिंपली गूगल करो कंपैरिजन, इतना सारा कोड लिखते थे, इतना क्लटर कोड होता था वो, अब स्विफ्ट का इतना क्लीन कोड लगता है, राइट। तो लाए इसलिए थे स्विफ्ट को, राइट, फिर ये यूआई किट वगैरह इसलिए लाए थे कि ऑब्जेक्टिव सी में चीजें क्लटर थी, उसको क्लीन कर दिया स्विफ्ट ने आपके। पर इतने साल से यूआई किट चल रहा था, अभी भी चल रहा है, आगे भी चलेगा, ठीक है, अगेन यूआई किट डिप्रिकेट नहीं हुआ है, ध्यान रखना, यूआई किट चलेगा अभी भी, कुछ साल तो चलने ही वाला है। तो अभी भी कई लोग हैं दुनिया में जिनको मैंने बोला यूआई किट ही आता है, तो भी वो सर्वाइव कर रहे हैं अच्छे से, क्योंकि कई सारे कंपनीज में आज भी यूआई किट में ही काम हो रहा है, ठीक है। यूट्यूब पे आके लोग बड़ी बड़ी बातें कर देंगे लिंक्डइन पे, पर एक्चुअल रियलिटी अलग होती है, अगर आप फील्ड पे जाके चेक करोगे तो वो आप खुद से भी चेक कर सकते हो। तो हर कंपनी सॉफ्टवेयर यूज नहीं कर रही, बट हाँ ये है कि आना चाहिए, इंपॉर्टेंट है, ठीक है, बात वो है। तो कहाँ पे थे हम लोग, हाँ, एप्पल, इन लोगों ने डिसाइड किया कि यूआई किट से और बेटर अप्रोच प्लस मल्टी प्लेटफॉर्म वाला अप्रोच देना है, जो कि यूआई किट में इतना फिजिबल नहीं थी, क्योंकि वहां पे फिर मैक ओएस का अलग अपना यूआई लाइब्रेरी है, आईओएस के लिए यूआई किट है, आईपैड का अलग चल रहा है, और वॉच का अलग और टीवी का अलग चल रहा है। उसको भी इनको एक सेम पेज पे लाना था, इसलिए ये लोग स्विफ्ट यूआई को लेकर आए कि जनरिक हो जाएगा सबके लिए, प्लस इसमें और ऑप्टिमाइज कर दी चीजें जो यूआई किट में थोड़े से गैप्स हैं या उसको और थोड़ा बेटर कर सकते हैं, तो यहाँ पे और बेटर करने का ट्राई की चीजें, जैसे एनिमेशन में आप देखोगे, या और भी हम उस पर आएंगे कई चीजों में, सिंक अवेट वगैरह, स्विफ्ट कॉन्करेंसी, वो बहुत स्मूथली चीजें, बहुत क्लीनर कोड है, बहुत ज्यादा, ठीक है, कोड देख के ऐसा मजा आ जा रहा है, मतलब देसी भाषा में बोलो तो इट्स लाइक कि ऐसा देख के आपको लगेगा कि हाँ यार ये यूआई किट में इतना तामझाम करते थे हम, नाउ इट्स वेरी मोर क्लीन, मोर रीडेबल कोड, ठीक है, ये फील आएगा आपको वंस यू स्टार्ट कंफर्टेबल विद स्विफ्ट यूआई एंड कंबाइन और सिंक अवेट और एवरीथिंग, ठीक है। तो ठीक है, यहाँ तक क्लियर है, एक बार एक्नॉलेज करो कि सिमिलर कंपोनेंट्स हैं, एक्सप्लोर करेंगे खुद से भी जाके, और देख के समझ आ रहा है, देखो अगेन कॉमन सेंस है अपने में, बच्चे नहीं है हम लोग। तो यहाँ तक क्लियर है चीजें, ऑल गुड, एक्नॉलेज, बाकी लोग सो गए कि उठे हुए हैं, कैसा सीन है पता नहीं, मुझे एटलीस्ट बता दो कि आप जग रहे हैं, कुशल सुन रहे हैं, समझ आ रहा है, देख रहे हैं, ठीक है, कूल। तो यहाँ तक चीजें क्लियर है, कूल, आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। एक कॉन्सेप्ट इन्होंने दिया मॉडिफायर्स का, वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, ठीक है, मैं डायरेक्ट मॉडिफायर पे आ रहा हूँ। मॉडिफायर क्या बोल रहा है, इट्स लाइक योर, एक प्रोटोकॉल है बेसिकली, और वो बोल रहा है ये प्रोटोकॉल को कंफर्म करके एक अपना बना लो, और फिर इसको आप कहीं भी यूज कर सकते हो, ठीक है, उसके एग्जांपल पे हम आएंगे। मैंने एक कोड बेस रखा है, कोड में मैं लेके जाऊंगा, बट अभी के लिए कॉन्सेप्चुअली समझो थोड़ा सा, क्योंकि आपने देखा होगा सॉफ्टवेयर का ये कोड कहीं तो देखा ही होगा आपने, राइट, आज तक, आई होप। अब ये आप बोलोगे क्वेश्चन, हर जगह अगर मेरे को टेक्स्ट पे ये चीजें करनी, स्टाइलिंग, ये स्टाइलिंग है बेसिकली, राइट, आप थोड़ा सा कॉन्फ़िगर कर रहे हो, फॉन्ट क्या होगा, कलर क्या होगा, पैडिंग क्या होगी, कॉर्नर रेडियस, ये सब, ये चीज अपन बटन के लिए भी करते हैं, लेबल्स के लिए भी करते हैं, राइट, मतलब टेक्स्ट के लिए, बटन के लिए, या और भी चीजों के लिए, राइट, कोई भी कस्टम व्यू। तो पॉइंट इज कि बार बार रिपीटेटिव कोड हो जाएगा, इसको रीयूजेबल करना है, तो जैसे हम प्रोग्रामेटिकली यूआई करते हैं यूआई किट में, ठीक है, देखो दो चीजें होती है यूआई किट में भी, स्टोरी बोर्ड एक्सआईबी वाला एक चीज है, एक प्रोग्रामेटिकली यूआई है। अब ये जो है अपना सॉफ्टवेयर, ये प्रोग्रामेटिकली यूआई है काइंड ऑफ, ठीक है, उससे रिलेट कर सकते हो अगर वहां पे आपने प्रोग्रामेटिकली यूआई किया होगा, और कभी तो किया ही होगा, राइट। तो हम लोग रीयूजेबल बनाना चाह रहे हैं चीजों को, उसके लिए एप्पल ने ये बढ़िया चीज दी है इसमें, वो बोल रहा है भाई एक बार में तुम स्टाइलिंग जो भी करना है कर लो कॉन्फ़िगर, और उसको क्विकली अब रीअप्लाई कर सकते हो हर कंपोनेंट पे, कोई भी व्यू पे, लेबल पे, बटन्स पे, कहीं भी, उस तरह का कॉन्सेप्ट है ये, ठीक है, इतना समझो अभी के लिए। अगर आप खुद से इसको ट्राई करो, अगर अपन कोड बेस में देखेंगे तो क्विकली रिलेट कर लोगे, इट्स वेरी इजी और बढ़िया चीज है, मतलब, ठीक है। तो बेसिकली ये कुछ नहीं कर रहा है, आपको ये एक ऑप्शन दे रहा है कि आपको कुछ भी ऐसे मॉडिफिकेशंस करने हैं, कॉन्फ़िगरेशंस करने हैं अपने कंपोनेंट पे, वो कंपोनेंट कुछ भी हो सकता है, उस कंपोनेंट के लिए आप अपना मॉडिफायर बनाओ और उसको फिर बिंदास अप्लाई करो जहां पे करना है, बार बार कोड नहीं लिखना पड़ेगा। तो इट्स सिंपली नथिंग बट आपका रीयूजेबिलिटी के लिए बनाया गया है, ठीक है, और कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो आपको बार बार 10-10 लाइन के, 5-5 लाइन की फॉर्मेटिंग के कोड नहीं लिखने पड़ेंगे, ये सारा आपका रिप्लेस हो जाएगा, एक बार लिख दो, बार बार रीयूज करो, जो कि हम नॉर्मली इट्स बेसिक फंडामेंटल ऑफ प्रोग्रामिंग जो हम करते भी हैं, बस वही चीज हो रही है यहाँ पे। तो उसको एक नाम दे दिया, उसका एक प्रोसेस है, एक फॉर्मेट है, बस उसको फॉलो करना होता है, राइट, जैसे हम यूआई किट में करते हैं, स्विफ्ट में करते हैं नॉर्मली, वैसे ही स्विफ्ट यूआई में ये चीज है, ठीक है। इसके आगे बढ़ते हैं, स्टेट का एक चीज दी है, इस पे भी हम आएंगे। अभी के लिए इतना देखो कि कुछ इन्होंने ना स्टेट को मेंटेन करने की कुछ चीजें दी है, ऐसा समझो। तो इट्स लाइक आपका ये भी है स्विफ्ट यूआई में, अगेन अब ये कुछ प्लस पॉइंट्स है यूआई किट से कंपेयर करोगे तो, वहां पे ऐसी चीजें नहीं है, वहां मैनुअली करना पड़ता है अगर आपको स्टेट मेंटेन करनी है तो, राइट, एग्री करते हो उससे। यहाँ पे मैनुअली नहीं करना पड़ेगा, यहाँ पे आप स्टेट पे वो ऑब्जर्व करेगा काइंड ऑफ,
उस हिसाब से अपडेट कर लेगा चीजें, इस तरीके से चीजें। RX Swift किया होगा कंबाइन तो रिलेट कर सकते हो ज्यादा, बट हाँ पॉइंट ये ऑब्जर्वर पैटर्न अगर थोड़ा बहुत पता है तो एग्री कर पा रहे हो उस चीज से। यूआई किट में ऐसी चीजें नहीं है, RX Swift को अपन यूज ना करें तो। और यहाँ पे ऐसी चीजें हैं, स्टेट मेंटेन हो जाती है, प्रॉपर्टीज बनाओ, ऑब्जर्व करो, उस हिसाब से चीजें अपडेट हो जाती है, एज सिंपल एज दैट। ठीक है, देखो कुछ भी कॉम्प्लेक्स नहीं, बहुत इजी चीजें हैं पहली बात। तो डरने की तो बिल्कुल जरूरत नहीं, मैं आपको अभी के लिए कमिट कर सकता हूँ। अगर आप, मैं जैसा बोल रहा हूँ, जैसा आप अगर उसके लिए एफर्ट लेते हो, जैसा आगे कोई टास्क असाइनमेंट दिया जैसा आज भी मिलेगा आपको, आप जाके करो। हर सेशन के बीच में हम 1-2 दिन का गैप भी रखते हैं, इससे आपको टाइम भी मिले। अगर आप करते हो प्रॉपर तो विद इन 2 वीक्स में आपका बेसिक सारा स्विफ्ट यूआई, आपका नेविगेशन कॉलिंग और आपका एपीआई कॉलिंग, असिंक का वेट, ये सारा हो जाएगा। ठीक है, इवन मेन एक्टर्स वगैरह 2 से 3 हफ्ते मैक्स। ठीक है, उसमें आपका डेली सेशन भी नहीं है, तो बहुत कम सेशन में हम बहुत चीजें कवर कर सकते हैं। और आप एक्चुअली खुद से हैंड्स ऑन करके आपको कॉन्फिडेंस आ जाएगा, पॉइंट ये है। ठीक है, मैं तो पढ़ाने में पूरा स्क्रैच से जाके बच्चों की तरह पढ़ा दूं, उसका डजन मेक सेंस। फिर ऐसे वीडियो तो भरमार पड़े और आप खुद भी देख सकते हो। पर ये सेशन लेने का सेंस ही है कि हम आपको सच में, आप एक्टिवली इन्वॉल्व हो, देखो चीजें करो और खुद से करो प्रैक्टिस, और फिर डिस्कस करो चीजें कहाँ चैलेंजेस आ रहे हैं। राइट, दैट मेक सेंस। ठीक है, ये मैच्योर वे है लर्निंग का। ठीक है, अगेन हम बच्चे नहीं है तो हम बच्चों की तरह नहीं सीखेंगे, हम थोड़े बड़े होंगे तो बड़े की तरह सीखेंगे। राइट, मेक सेंस। तो स्टेट बाइंडिंग, नथिंग बट स्टेट मेंटेन हो रही है और कुछ नहीं है, स्टेट मेंटेन हो रही है। आगे देखेंगे एग्जांपल्स में, पर अभी के लिए इतना समझो कि एक ऑब्जर्वर टाइप चीजें हैं, मतलब एक डेटा पे अपने एक अपना, जैसे अपन उसमें नहीं करते थे नोटिफिकेशन ऑब्जर्वर वगैरह यूज किया अपन ने, राइट, यूआई किट में, उस तरीका समझ सकते हो थोड़ा सा। ठीक है, तो वो ऑब्जर्व कर रहा है, जैसे उसकी वैल्यू चेंज होगी ये हिट हो जाएगा, या फिर डिड सेट समझ लो, प्रॉपर्टी ऑब्जर्वर समझ लो, रैपर समझ लो, उस तरीके से भी समझ सकते हो। ठीक है, तो उसमें हम देखते हैं ना, डेड सेट पे कॉल बैक चला जाता है, ऐसी वैल्यू चेंज होती है, फिर वहां से हम ट्रिगर करते हैं कुछ चीजें, इस तरीके से समझ सकते हो उसको थोड़ा सा। तो वैसे ही यहाँ पे ये चीज है। ठीक है, बट वहां से मैनुअली करते थे, यहाँ पे एप्पल ने बोला भाई अब तुम मत करो तामझाम, हमने थोड़ी चीजें बना दी हैं, यहाँ से इजीली मैनेज हो जाएगा। पॉइंट इज दैट। ठीक है, तो यहाँ पे ऐसी बेसिक से कुछ डाला हुआ है, पर पॉइंट है कि काउंट पे स्टेट वाला बनाया और उसको जैसे जैसे चेंज होगा ये चेंज होता जाएगा टेक्स्ट, उस तरीके से पढ़ाएंगे इसके लेटर ऑन। ठीक है, अब नेविगेशन की भी चीज है, नेविगेशन को मैं अभी के लिए स्किप कर रहा हूँ। ये देखो लिस्ट आ गया, ये बहुत बेसिक चीज है, बट अगेन एक्चुअल कोड बेस में देखोगे मेक्स मोर सेंस। अभी के लिए इट्स नथिंग बट, जैसे मैं बोला, टेबल व्यू से रिलेट कर रहे हैं, पर इसमें आप कुछ भी डाल सकते हो। अगेन सिमिलर लाइक टेबल व्यू, इसमें आप अंदर जैसे आप देख रहे हो फॉर ईच के अंदर जो भी डाला वो आपका एक सेल हो गया काइंड ऑफ, ऐसा समझ सकते हो। अभी के लिए उस सेल में सिर्फ एक टेक्स्ट डला हुआ है, मतलब एक लेबल डली हुई है, अगर यूआई किट के कंटेक्स्ट में बोलूं तो। राइट, और उसमें 5 रन हो रहा है, मतलब नंबर ऑफ रोज कितनी है, 5। उसमें हम 5 रिटर्न करते थे नंबर ऑफ रोज में अलग से, यहाँ पे सारा काम यहीं पे हो रहा है। और अगेन क्लीनर कोड है, और वहां डेलीगेट के और डेटा सोर्स के 2-3 फंक्शन डालने पड़ते थे, यहाँ पे उतना तामझाम ही नहीं, इतना सही है बस। एग्री कर रहा हूँ उस चीज से, थोड़ा सा रिलेट कभी तो देखा होगा स्विफ्ट यूआई, ये टेबल भी तो पता ही है सबको। उतना सारा कोड जो हम तामझाम करते हैं वो यहाँ पे इतने से में हो जा रहा है। एग्री एग्री। 38 लोग हैं, गिनती के 10 वोट नहीं आ रहे भाई, बाकी लोग सो रहे हैं कि जाग रहे हैं। एग्री एग्री, हाँ। ठीक है, थैंक्स। तो बात समझ पा रहे हो आप? इतना सारा तामझाम और यहाँ पे इतने से में काम हो रहा है। अब आप इसको है ना एक्चुअली, जब थोड़ा थोड़ा चीजें देखोगे ना इसको, तो आप अप्रिशिएट करना स्टार्ट कर दोगे। मेरे साथ भी यही हुआ था, जब तक मैंने सॉफ्टवेयर को कभी नहीं देखा था, मुझे भी एक फियर कह लो, या मुझे एक थोड़ा सा होता है ना, कंफर्टेबल नहीं है। अपन यूआई किट वाले लोग हैं भाई, तो उसी के साथ कंफर्टेबल है, फैल के चल रहे हैं, क्योंकि यूआई किट में इतना कॉन्फिडेंस है, कुछ भी दे दो भाई कर लेंगे। ठीक है, ऐसा कॉन्फिडेंस है आप लोगों में भी होगा, राइट। पर यूआई स्विफ्ट यूआई में कॉन्फिडेंस नहीं, क्योंकि भाई कभी किया ही नहीं है। और जब करने लगे और देखने लगे तो समझ आया कि हाँ एप्पल ने सच में कोई ढंग का काम किया है। और एप्पल वैसे भी करता है, स्विफ्ट भी वैसे बेस्ट लैंग्वेज में आती है काइंड ऑफ। तो स्विफ्ट को भी इसलिए लाए थे कि दुनिया की, अच्छा स्विफ्ट की स्टोरी में इन शॉर्ट छोटी सी लेना चाहूंगा, कि एप्पल को ये दिख गया था, जो मैं बता रहा था, ऑब्जेक्टिव सी में कोड बहुत क्लटर होता था, तो ऐप स्टोर पे एप्स उनको डेवलपमेंट स्पीड बढ़ानी थी। अब एंड्रॉइड, सॉरी म्यूट म्यूट, तो सॉरी, तो पॉइंट इज कि एप्पल को बेसिकली मेक श्योर करना था कि डेवलपमेंट्स के लिए इजी हो ऐप बनाना। ऑब्जेक्टिव सी इतनी इजी लैंग्वेज नहीं थी, एक तो वो अलग है बाकी लैंग्वेजेस से थोड़ी। ठीक है, फिर एक लर्निंग कर्व ज्यादा हो जाता है उसमें, फिर इतना क्लटर कोड है। तो एप्पल ने कुछ साल पहले, ये मतलब 2014-15 में लॉन्च हुई स्विफ्ट, पर 2010-11-12 में डिसीजन ले लिया था कि एक नई लैंग्वेज लानी पड़ेगी,
तुमको दिख रहा था कि लोग आईफोन तो ले रहे हैं पर एप्स कम है मार्केट में, मतलब ऐप स्टोर पे। अब प्ले स्टोर बहुत जल्दी ग्रो कर रहा है, तो कुछ तो करना पड़ेगा। तो वहां पे आपका जावा में कोड हो रहा था, स्टिल जावा इज फार बेटर देन ऑब्जेक्टिव सी, अगर क्लीनर वाइज कहूँ तो। फिर वो भी लेटर ऑन कॉटलिन लेके आ गए, पर वो स्विफ्ट से इंस्पायर्ड है काइंड ऑफ। पर हाँ, यहाँ पे कुछ एंड्रॉइड वाले भी बुरा मत मानना, पर द पॉइंट इज की कॉटलिन इंस्पायर्ड बाय स्विफ्ट। तो स्विफ्ट को लाने के पीछे यही रीजन था कि अब जब नई लैंग्वेज बना ही रहे हैं तो चलो दुनिया की बेस्ट लैंग्वेज बनाते हैं फिर, व्हाई नॉट, राइट। क्योंकि जब आप कुछ नया स्क्रैच से बनाने जा रहे हो तो आपके पास पूरी फ्रीडम है कि आप जो उसमें डालना चाहे, जो करना चाहे कर सकते हो। आपके पास दुनिया के बेस्ट सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स हैं, आपके पास दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी है, पैसे की कोई कमी नहीं है, ठीक है, रिसोर्सेज की कमी नहीं है, तो व्हाई नॉट, राइट। तो फिर उन्होंने क्या किया, जावा स्क्रिप्ट उठाई, जावा उठाई, सी उठाया, सी प्लस प्लस, पाइथन सारी उठा के, जिनके जो जो बेस्ट बेस्ट फीचर थे, गो वगैरह एवरीथिंग, उस सबका बेस्ट उठा के यहाँ डाल दिया। तो आप देखोगे स्विफ्ट में सारी बढ़िया चीजें डली हुई हैं, और कई चीजें ऐसी भी है स्विफ्ट जो लाता है, और वो अदर लैंग्वेजेस भी फिर लाती है, अगर आपने ऑब्जर्व किया होगा तो। ठीक है, तो ये अलग से एक टॉपिक है, इस पे आप कभी खुद से भी देखना, आगे और बात करेंगे। बट द पॉइंट इज, मैं आपको ये बताना चाह रहा था कि एप्पल ने फिर जब स्विफ्ट वे लाया, तो जब आप ला ही रहे हैं तो अगेन हाँ, मैं एक पॉइंट और बता दूं, स्विफ्ट वे, जेटपैक कंपोज, फ्लटर, ये तीनों समवॉट सिमिलर है, ये सब डिक्लेरेटिव वाली चीजें। ठीक है, तो इनका सेंटेंस काफी सेम दिखेगा, पर कुछ कॉन्सेप्ट्स अलग है। कुछ चीजें एप्पल की स्पेसिफिक है, आईओएस स्पेसिफिक है, या स्विफ्ट वे स्पेसिफिक है, कुछ चीजें उनकी जेटपैक कंपोज वाली है जो एंड्रॉइड स्पेसिफिक है, और कुछ अपना फ्लटर की या डार्ट की वो स्पेसिफिक है। ठीक है, तो पॉइंट इज, बट हाँ, ऑल तीनों का सिंटैक्स फेमिलियर रहेगा, या कॉन्सेप्चुअली पैराडिग्म वगैरह सेम रहेगा। तो जब एप्पल को लगा कि यूआई किट से और बेटर चीज हो सकती है और मल्टी प्लेटफॉर्म लाना है वो सब, तो ये बोले कि भाई स्विफ्ट है, तो जिससे इसलिए मैं बोला अभी टेबल व्यू का इतना तामझाम आपका इतना इजीली कवर हो गया। तो बोले कोड और लेस हो सकता है, चीजें और फास्ट डेवलपमेंट हो सकता है, जो कि ऑब्वियसली नो डाउट स्विफ्ट में आप लिटरली फास्ट बना सकते हो चीजें, और प्रोटोटाइपिंग भी यहाँ पे चलो कह लो वहाँ स्टोरी बोर्ड में जल्दी कर लोगे, बट स्टिल यहाँ पे भी कोई टफ नहीं है। प्लस लाइव प्रीव्यू दिखता है यहाँ पे, राइट, तो उसके अपने फायदे हैं जो कि वहां नहीं दिखता था। तो आप देखोगे यूट्यूब पे एक दो फेमस बंदा है, उसका नाम बोल, पॉल हुडसन, शायद पॉल हुडसन के हैं, और एक दो और है यूट्यूबर्स, उन्होंने ऐसे वीडियोस डाले हुए हैं कि पैरेलली वो दोनों स्क्रीन शो कर रहे हैं, वो कोड कर रहा है बंदा, कि वो एक छोटा सा एक स्क्रीन बना रहा है इन यूआई किट एंड इन स्विफ्ट यूआई, और फिर टाइमर चल रहा है साइड में। ऐसा कोई वीडियो देखा है कभी किसी ने, एक्नॉलेज करना चाहेगा? तो उसमें वो दिखाने की, देखो मेरे को यूआई किट में कोड करने में 4 मिनट लगे, तो वहां 3 ही मिनट लगे, लाइक दैट। ठीक है, और लिटरली क्योंकि कोड लाइंस, नंबर ऑफ कोड कम है, राइट, ये तो आप लोग एग्री करते हो। तो मोर कोड कम है, क्लीनर है, और थोड़े अच्छे कॉन्सेप्ट्स भी लेकर आए इसमें। देखो सब अच्छा अच्छा नहीं, कुछ माइनस भी आएंगे, बट द पॉइंट इज कि अच्छी चीजें काफी है, या चीजें अच्छी करने का ही ट्राई किया गया, इंटेंशन वही थे, इस बात को समझना। ठीक है, और कुछ चीजें आज भी चैलेंजेस हैं यूआई किट में, तो उसको अभी भी दोनों का मिक्सचर यूज कर रही है। कई कंपनीज हैं जिनका पॉसिबल नहीं, लेगेसी प्रोजेक्ट्स हैं, तो यूआई किट को पूरा निकाल नहीं सकते आप। तो कुछ चीजें नए फीचर्स वो सॉफ्टवेयर में बना रहे हैं, कुछ चीजें जो सॉफ्टवेयर में अभी भी इतनी फिजिबल नहीं है, उसके लिए यूआई किट ही यूज कर रहे हैं वो। उस पर भी हम आएंगे कि दोनों को एक साथ कैसे करते हैं, इवन आपने सुना भी होगा, और उस पर भी हम आगे आएंगे। बट द पॉइंट इज कि क्यों एप्पल ने, क्योंकि एप्पल को पता है ये एक पूरा एक जर्नी है माइग्रेशन का। आज सॉफ्टवेयर को आए करीब 2019 में आया था, राइट, करीब करीब 5-6 साल के ऊपर हो गए, और आज भी सॉफ्टवेयर इतना मैच्योर नहीं माना जाता, और यूआई किट को तो 10 साल के ऊपर हो गए या 15 साल हो गए होंगे। तो यूआई किट ऑब्वियसली एक होता है ना, एक पुराने पापा मम्मी वाली एज के हैं, और ये भी नया बच्चा है, तो इस तरीके से ट्रीट होता है सॉफ्टवेयर मार्केट में। बट स्टिल अभी सॉफ्टवेयर काफी मैच्योर हो गया, बड़ा हो गया, 18 साल का हो गया काइंड ऑफ। अब बच्चे बड़े हो जाते हैं ना, ऐसा टीन एज निकल गई है इस तरीके से। ठीक है, तो अब सॉफ्टवेयर पे लोग रिलाय तो कर रहे हैं, पर द पॉइंट इज आज भी यूआई किट की एक इंपॉर्टेंस है, और उसको अब मैं एक फ्रेशर्स के लिए कहना चाहूंगा, जो फ्रेशर ऑडियंस है यहाँ पे, कि अगर आपको यूआई किट बिल्कुल नहीं आता है तो ये करियर पे इफेक्ट करेगा कहीं ना कहीं। आज ऐसा मार्केट है कि सॉफ्टवेयर नहीं आता तो एक बार तो चल जाएगा, क्योंकि कई कंपनीज आज भी प्योर यूआई किट में ही बैठी हुई है, पर सॉफ्टवेयर में प्योर बैठी हुई कम कंपनीज है, ये ध्यान रखो, क्योंकि कई मोस्टली दुनिया में एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट चल रहे हैं, वहां पे दिक्कत आ जाएगी। आने का पॉइंट ये है। ठीक है, तो यूआई किट भी आना चाहिए, नहीं आता तो यूआई किट की भी प्रैक्टिस करो, मैं आपको रिकमेंड करूंगा, उसको बिल्कुल छोड़ो मत। अगर आप कॉलेज के स्टूडेंट्स हो या फ्रेशर्स हो आईओएस में, और सिर्फ सॉफ्टवेयर की आज तक यूआई किट देखा ही नहीं है, तो भाई यूआई किट थोड़ा बहुत देख लो, थोड़ा बहुत करके आ जाओ, और बहुत ईजी है यूआई किट भी, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो कूल, तो आगे बढ़ते हैं फिर, यहाँ तक ऑल क्लियर। ठीक है, फिर ऐसी कुछ चीजें हैं, फॉर्म्स वगैरह, इस पे मैं आऊंगा, ये थोड़ा सा अलग है, इस पे आएंगे। फिर अब आते हैं यहाँ पे स्टेट मैनेजमेंट। जैसे कि मैं बोल रहा था, स्टेट मैनेजमेंट में नथिंग बट आपको अब दो चीजें हैं यहाँ पे। एक
अब मैं कैसे कहूँ, अगेन प्रोजेक्ट के कंटेक्स्ट में बोलूंगा तो मेक्स मोर सेंस, बट अभी के लिए ऐसा समझो कि देखो यहाँ लिखा भी है साफ साफ, अगर आपको डेटा पास करना है चाइल्ड व्यूज को तो ऑब्जर्व ऑब्जेक्ट करके एक चीज है, ठीक है, ये एक एनोटेशन है काइंड ऑफ, ऐसा कह सकते हैं, ये एक एनोटेशन नहीं कहूंगा बट एक प्रोटोकॉल कह लो, या उसको आप कंफर्म कर रहे हो, ठीक है। तो अब पॉइंट इसकी आप एक ऑब्जेक्ट बना रहे हो, आप उसको डेटा पास कर रहे हो, इस तरह की चीजें हैं जैसे हम लोग इवन हम यूआई किट में भी करते थे, ठीक है, व्यू मॉडल एमवीवीएम में तो काम किया होगा सब लोगों ने। अब एमवीवीएम में काम किया तो डेटा पास करते ही हैं हम लोग, और डेटा पे अगेन जैसे बोला डिट सेट ले लो, प्रॉपर्टी रैपर्स ले लो, या नोटिफिकेशन ऑब्जर्वर, या आरएक्स स्विफ्ट हो गया, या कंबाइन, इस तरह की चीजें अगर यूज करी हैं तो उस तरीके से सेम आप यहाँ पे रिलेट कर पाओगे, ठीक है। अगेन हम इसको प्रोजेक्ट के कंटेक्स्ट में ज्यादा देखेंगे, अभी के लिए मैं थोड़ा स्किप कर रहा हूँ उसको, और मैं चाहूंगा आप खुद से भी एक्सप्लोर करो चीजें, अगेन सारी चीजें मैं ही बता दूंगा तो आपके लिए कुछ बचेगा नहीं एक्सप्लोर करने के लिए। तो पॉइंट इस बार यहाँ पे ज्यादा कुछ नहीं हो रहा है, एक काउंटर बना है उसी को ऑब्जर्व करके यहाँ पे इंक्रीमेंट हो रही है चीजें, और सॉरी बस इतना ही हो रहा है काइंड ऑफ, ज्यादा कुछ नहीं है, बट हाँ ये कोड देखने में थोड़ा अटपटा लग रहा होगा तो उसकी अंडरस्टैंडिंग पे आएंगे लेटर ऑन, ठीक है। आगे बढ़ते हैं यहाँ से थोड़ा सा, फिर एक और चीज है यहाँ पे इन्वायरमेंट ऑब्जेक्ट करके एप्पल ने एक चीज दी है जो कि एक ग्लोबल स्टेट को काइंड ऑफ मेंटेन कर रहा है, ठीक है, इस तरीके से चीज है, मतलब इट्स लाइक कि आपका ऐसा समझो इन्फो लिस्ट हुआ करता था या यूजर डिफॉल्ट, उससे थोड़ा रिलेट कर सकते हो। ग्लोबल लेवल पे ये स्टैटिक वेरिएबल हम बना देते थे ग्लोबली, ऐसा आप अपने प्रोजेक्ट्स में करते होंगे राइट, कुछ फ्लैग्स हम मेंटेन करते हैं, कुछ वैल्यूज हम मेंटेन करते हैं, वो आप अभी सॉफ्टवेयर में ऐसे कर सकते हो काइंड ऑफ, ठीक है। तो ये ग्लोबल लेवल पे मेंटेन रहता है, उसको कहीं भी यूज करो। अब यहाँ पे ये क्या कर रहे हैं, ये लोग एक यूजर नेम बनाया है, ठीक है, इसको आगे देखो इन्होंने क्या किया है, ये लोग उस यूजर नेम से इन्वायरमेंट में डाल रहे हैं और उसको बाद में फिर यहाँ पे यूज कर रहे हैं बॉडी के अंदर। अब अगेन इसके मैं एग्जैक्ट उस पर आऊंगा बाद में, बट पॉइंट इज अभी के लिए मोटा मोटा समझोगे तो यूजर नेम है, एक यूजर नेम आपके ऐप में, जैसे समझो आपने लॉग इन किया हुआ है लाइक योर इंस्टाग्राम समझ लो, उसका यूजर नेम है आपका एबीसीडी जो भी है, ठीक है, उसको ओवरऑल ऐप में मेंटेन करना है, उसके लिए इन्होंने ये तामझाम किया है। कहने का पॉइंट ये है, वो सेटिंग स्क्रीन में भी दिखता है आपके, माई प्रोफाइल पे भी दिखता है, हर जगह दिखता है राइट, पॉइंट इज दैट, उस तरीके से ही चीज है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अभी के लिए ज्यादा नहीं घुसेंगे उसमें। तो ऐसी तीन ऑप्शन है, तीनों का एक कंपैरिजन है काइंड ऑफ, पर अगेन मैं इसको अभी के लिए स्किप करना चाहूंगा, इस पर बाद में आएंगे हम लोग। और नेविगेशन को भी मैं थोड़ा सा स्किप करूंगा अभी के लिए, विल गो टू दिस, मैं इस पे आना चाह रहा हूँ आपके दिस वन। मैं बोल रहा था ना ऐसे बहुत ही बढ़िया क्लीन कोड हो जाता है, वो यहाँ पे मुझे दिखा एक्चुअली, इसको मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ। मतलब अब अभी तक एपीआई कॉल करते थे राइट, अब एपीआई कॉल कैसे करते थे, नॉर्मली यूआरएल सेशन में ऐसे ही करते हैं कॉल नॉर्मली, ठीक है। अब इसके लिए इतना तामझाम कोड लिखना होता है आपको, इतना हम तामझाम ऐसा लिखते हैं, फिर कंप्लीशन हैंडलर से हम कॉल बैक देते हैं राइट, फिर इसमें ट्राई कैच वगैरह भी डालना हो तो डाल देते हैं काइंड ऑफ, ये सब चीजें, ठीक है। अब इतना सारा कोड, और ये इतना रीडेबल कोड नहीं अगर आप समझ पा रहे हो उस कंटेक्स्ट में, और इसी को अब देखो इस अप्रोच में आओ, ये नई अप्रोच है सिंक अवेट वाली, जो सॉफ्टवेयर में बढ़िया से इंटीग्रेट हो जाती है। इसमें देखो इतना क्लीन कोड है, इतना क्लीन, एक यूआरएल बनाया, एक ये ट्राई करके अवेट पे ये किया, असिंक अवेट कैसे वर्क करता है उस पर आएंगे हम, पर अभी के लिए इतना समझो कि एक फंक्शन है मेरा, इसको मैं कॉल कर रहा हूँ, एपीआई यहाँ से कॉलिंग जा रही है, अवेट क्या करता है उसके लिए होल्ड करता है, जब तक रिजल्ट नहीं आ जाता तब तक वो वेट करेगा, पर असिंक्रोनसली, ठीक है, सिंक नहीं है। तो डिस्पैच डॉट मेन डॉट असिंक करते थे, या ग्लोबल क्यू डॉट असिंक वाला चीज, और अपने ने पहले के सारे सेशन इसी पे लिए हैं, तो आई होप यू हैव बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ सीरियल क्यू, कॉन्करेंस क्यू, डिस्पैच क्यू, जीसीडी। एक बार एक्नॉलेज कर सकते हो जो लोग अटेंड किए हैं, जिन लोग की अंडरस्टैंडिंग है। Yeah, definitely, Abrar. I'm about to share this doc in the group. No problem. तो हाँ अक्नॉलेज कर सकते हैं, एवरीवन नो, ठीक है। तो इससे कंपेयर कर सकते हो आप, वहां पे हम लोग इतना तामझाम करते थे, यहाँ पे असिंक अवेट बहुत बढ़िया से चल जाता है, ठीक है। उस पर हम आएंगे, असिंक अवेट पे हमारा ऑलरेडी सेशन पेंडिंग चल रहा है, उस टाइम के लिए मैंने इसलिए अवॉइड किया था उस सीरीज में, क्योंकि प्रोजेक्ट के कंटेक्स्ट में देखें और सॉफ्टवेयर के कंटेक्स्ट में देखेंगे तो ज्यादा आपको चीजें सही लगेंगी, इसलिए। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो असिंक अवेट में कुछ नहीं, असिंक्रोनसली कॉल जा रहा है, फिर जैसी रिजल्ट आता है तो इसमें रिजल्ट आ जाएगा, और फिर वो डिकोडर से मैप करके इसमें डेटा मिल जाएगा और आप रिटर्न कर दोगे। और इसमें कोई कंप्लीशन कॉल बैक वाला सीन नहीं है, इतना तामझाम नहीं है जो इतना तामझाम यहाँ हो रहा था। ये 4 लाइन में काम होगा, और ये एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड लाइंस, नथिंग, वेरी रीडेबल कोड, वेरी क्लीन कोड यू कैन से राइट। तो इसको सिंपली वैसे कॉल कर सकते हो, और इसमें कॉल करते वक्त ऑलरेडी ट्राई लगा हुआ, और यहाँ पे डू कैच चीज होती है जो हम टास्क के अंदर डाल के मेन थ्रेड से वो चीज होती है, उस पर आगे आएंगे।
अभी के लिए इतना समझो कि यहाँ से फंक्शन कॉल जा रहा है, ये वेट करेगा जब तक इसका रिजल्ट नहीं आ जाता, रिजल्ट आ जाएगा तो काम हो जाएगा, और मान लो कोई एरर आ गया तो कैच में चला जाएगा, और यहाँ पे जो आपको करना है अपनी एरर हैंडलिंग आप यहाँ कर सकते हो, एज सिंपल एज दैट। थोड़ा सा इतना समझ पा रहे हो, ऊपर ऊपर से देखो, डेप्थ में भी जाएंगे, तो पहले थोड़ा सा ऊपर बिग पिक्चर भी समझो, फिर डेप्थ में आएंगे बाद में, खुद से भी आप ट्राई करोगे, चीजें और रिलेट होंगी आपको। ठीक है, ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो रहा है थोड़ा? ओके गुड। ठीक है, तो अभी यहाँ पे देखो एक कंपैरिजन है, और ये आप खुद रिलेट कर सकते हो। उस ओल्ड वे में देखो नेस्टेड ज्यादा होते थे, कॉल बैक्स ये सब होता था इतना तामझाम। न्यू वे जो है सिंक अवेट वाला, उसमें ज्यादा क्लीन कोड है, रीडेबल कोड है। ठीक है, नो डाउट। एरर हैंडलिंग वहां पे मैनुअली करते थे, यहाँ पे एरर हैंडलिंग ट्राई कैच से खुद ही इंटीग्रेटेड हुई हुई है। क्यों? क्योंकि असिंक अवेट चलते ही ट्राई के साथ है, और उसमें आपका जब भी आप कॉल करोगे तो कैच लगाना ही पड़ेगा काइंड ऑफ, या आप लगाते ही वो इंटीग्रेट हुआ भी चीज है, तो ये इसलिए बेटर है। वहां पे मैनुअली होती थी, यहाँ पे सिस्टम का पार्ट बना दिया, प्रोसेस का पार्ट। फिर यूआई हैंडलिंग हम लोग मेन डॉट असिंग इतना तामझाम करते थे, यहाँ मेन एक्टर करके एक चीज है, अगेन मेन एक्टर अभी नहीं लिया कंटेक्स्ट में, उस पर आगे आएंगे, पर ऐसा समझो बस कि मेन एक्टर इज काइंड ऑफ रिस्पॉन्सिबल कि वो कोड आपको मेन थ्रेड पे रन करना है। अब वो हो सकता है व्यू मॉडल का भी कोड हो सकता है, और यूआई अपडेट का तो होगा ही काइंड ऑफ। ठीक है, जो कि हम डिस्पैच डॉट मेन डॉट असिंग करते ही आए इतने टाइम तक, उसी से रिलेटेड है, पर आगे आएंगे उस पर, अभी के लिए स्किप करो उस चीज को। ठीक है, उसके बाद वाला पॉइंट क्या है? असिंग कॉल्स के लिए वहां तामझाम है, यहाँ पे बहुत सिक्वेशन कॉल्स है, देखा होगा आपने, 4 लाइन रखी, सिक्वेंशियल खत्म बात। ठीक है, उस टाइप से थोड़ा सा, अगर मल्टीपल असिंग कॉल्स कर रहे हो उस कंटेक्स्ट में कह रहा है वो। और कैंसिलेशन वहां पे मैनुअली या हार्ड टू मैनेज था, यहाँ पे कैंसिलेबल टास्क एक चीज होती है, अगेन हम इस पे आएंगे, अभी के लिए पॉइंट नहीं है तो उसको स्किप करो। और बाकी डीबगिंग के लिए मल्टीपल क्लोजर में वहां डीबग करना पड़ता है आपको, यहाँ पे उतना तामझाम नहीं है, ईजी है यहाँ पे डीबग करना। ठीक है, क्योंकि क्लीन कोड है, ज्यादा लाइन ही नहीं है, तो इट्स इजी टू डीबग। ठीक है, उस पर भी हम आएंगे, बट हाँ आपको दिख के समझ आ रहा होगा कि यहाँ पे ज्यादा क्लीन कोड है तो ज्यादा इजी टू डीबग है थिंग्स। तो आप दोनों यूज कर सकते हो वैसे स्विफ्ट, तो यहाँ पे चीज है कि अगर आप नई एप्स बना रहे हो तो असिंक अवेट ही डालोगे, प्योर सॉफ्टवेयर में चीजें हैं। अगर लेगेसी कोड को मेंटेन कर रहे हो तो आप कंप्लीशन हैंडलर और दोनों का कॉम्बिनेशन यूज कर सकते हो, मतलब कुछ जगह को कुछ जगह ये इस तरीके से। ठीक है, लेगेसी कोड में आपको दिखेगा भी वो, बट ठीक है। तो यहां तक चीजें क्लियर हैं? ठीक है, यहां तक चीजें क्लियर है, कूल। अब आपको एक टास्क मिलेगा सर। ठीक है, आई होप बेसिक चीजें समझी होंगी, देखी होंगी, थोड़ा सा कंफर्टेबल आज हो गए होंगे आप। अब आप एक टास्क करोगे, कल हम लोग ब्रेक लेंगे, परसों मिलेंगे हम लोग काइंड ऑफ सेम टाइम पे। ठीक है, तो आपको छोटी सी टीम बनानी है। हाँ, स्टेट मैनेजमेंट, राइट, यू नीड टू फोकस। आपको खुद से पहले ट्राई करना है, पॉइंट ये है। ठीक है, उसमें एक्चुअल लर्निंग होगी, पॉइंट ये है। आपको मैं ग्रुप पे शेयर करूंगा स्क्रीनशॉट वीडियो, लाइक काइंड ऑफ, बहुत बेसिक ही रहेगा, ज्यादा कुछ कॉम्प्लिकेटेड नहीं। पर ट्राई करना है खुद से कि आप उसका यूआई भी बनाओ, उसमें एक डमी एपीआई कॉल भी डालो असिंक अवेट वगैरह यूज करके, खुद से ट्राई करना। अगेन गूगल चैट जीपीटी, मीडियम, सब कुछ अवेलेबल है। बट द पॉइंट इज कि हम लोग करते नहीं है, पर इस सेशन के लिए एटलीस्ट आप करके आओगे तो खुद से हैंड्स ऑन हो जाएगा, राइट, और फिर उसको हम डिस्कस करेंगे। तो खुद से ट्राई करना है, थोड़ा सा टाइम लगेगा, हार्डली असाइनमेंट में 1 से 2 घंटे भी नहीं जाएंगे अगर लिटरली देखे तो, क्योंकि बहुत छोटा होगा। पर मैक्स मान लो 2 से 3 घंटे मैक्स, जिसमें आपके पास आज का रात का टाइम है, कल का पूरा दिन है, परसों का भी दिन है, क्योंकि परसों मिलने वाले हैं हम लोग, राइट, कल का दिन गैप है, तो 2 दिन का टाइम है, 2 दिन में 2 घंटे तो निकाल ही सकते हो आई थिंक अपने लर्निंग के लिए, राइट। तो 2 ढाई घंटे बैठोगे फोकसली तो आराम से हो जाएगा, तो उसमें काफी कुछ सीखने को मिल जाएगा आपको। पॉइंट ये है कि आप खुद से ट्राई करोगे, और आपको वो यूआई इंप्लीमेंट करना है, उसमें एक एपीआई कॉल भी करना है, और उसमें आपको ये चीजें जो आज हमने देखी ये थोड़ा थोड़ा ट्राई करना, प्लस यूआई किट और वो जो इक्विवेलेंट वाला चीज देखा था हमने, वो कंपोनेंट भी थोड़ा बेसिक अपना ट्राई करो खुद से एक बार। ठीक है, हाँ ऋतिका, दिस सेशन स्टार्टिंग फील मोर कॉन्फिडेंट डेवलपिंग, या थैंक्स ऋतिका। ठीक है, अब मैं आपको क्विकली एक बार एक्स कोड पे ले जाना चाहूंगा, एक कोड बेस मैंने ऐसे डाल के रखा है डमी, तो मैं आपको जस्ट एक, आपको एक फील आए तो लेट मी शेयर माय एक्स कोड, और मैं एंटायर विंडो आई कैन शेयर, लेट मी जस्ट एंटर स्क्रीन। एक बार मुझे बताना कि स्क्रीन दिख रही है क्या? एक मिनट, स्क्रीन प्रेजेंट हो रहा है? हाँ, दिख रहा होगा स्क्रीन। ठीक है, तो देखो यहाँ पे मैंने एक कोड ऐसे ही रखा हुआ है यहाँ पे, तो मैं व्यू मॉडिफायर वाला बस एक चीज बता रहा हूँ, फिर हम रैप अप करेंगे आज। तो देखो पहले तो मैं प्रोजेक्ट रन करके दिखा दूं कि ये एक सैंपल कोड पे जैसे ही उठाया है। अब यहाँ पे कुछ नहीं, डॉक्स की इमेजेस आ रही है, अंदर चलेंगे मेन, और अंदर आप देखोगे
तो ये कलर और ये फॉर्मेटिंग पे ध्यान देना थोड़ा सा। आई होप सिमुलेटर दिख रहा है मेरा, राइट? हाँ। तो पॉइंट इसकी, आपको ये जो दिख रहा है इसका मैंने कलर दिया हुआ है, इसका भी कलर आ रहा है, राइट? इसको हम चेंज करेंगे। व्यू मॉडिफायर्स लगे हुए हैं यहाँ पे, देखना, ध्यान देना। मैं एक मॉडिफायर ये वाला है डिटेल वाला, जो कि इसके लिए है ऊपर वाले के लिए, और एक नीचे वाला है जो कि वैल्यू के लिए है। मतलब एक काइंड ऑफ टाइटल है, एक वैल्यू है, राइट? टाइटल वैल्यू, टाइटल वैल्यू, इस तरीके से है। तो पहले मैं दोनों को ही बदलते हैं अपन। जहां पे आपको ऑरेंज दिख रहा है, ऑरेंज वाला मतलब वो वैल्यू वाला चीज है, राइट? उसको हम बदलेंगे। तो ऑरेंज का मैं कर देता हूँ कुछ अलग कलर कर दो, मैजेंटा पिंक कर दो, यार कुछ भी कर दो, पिंक कर देते हैं। और उसको इटैलिक ना करके हम ऐसा बोल्ड कर देते हैं, ठीक है? कोई दिक्कत नहीं है। और इसको हम उल्टा कर देंगे, अब इसको इटैलिक कर देते हैं। और अगेन फॉन्ट भी चेंज करेंगे। मैं बोला तो टाइटल और वो सब फॉन्ट है, तो इसको टाइटल से ना करके मैं इसको या तो बड़ा कर देता हूँ, टाइटल, लास्ट टाइटल कर देता हूँ, ठीक है? बहुत बड़ा हो जाएगा, लेट्स सी कैसा दिखता है। इसको भी थोड़ा कुछ तो चेंज करते हैं अपन। और अपन क्या करते हैं, इसका कलर भी बदलना है। इसको पिंक किया तो इसको मैं कलर कुछ तो ब्लैक करते हैं, चलो, या ब्लू कर दो, कोई दिक्कत नहीं, या चलो ब्लैक ही कर देते हैं, ठीक है? ऐसे कुछ चेंजेस किए हैं। पहले इसको रन करते हैं, देखते हैं कि इफेक्ट भी हुआ कि नहीं, इम्पैक्ट आ रहा है कि नहीं इसका। लेट्स सी। अब अंदर जाएंगे, ये देखो हो गया इम्पैक्ट। लार्ज टाइटल हो गया, कुछ ज्यादा ही लार्ज हो गया, ये वो छोटा हो गया। और कलर देखो, वो ब्लैक में हो गया, ये कलर पिंक किया था, पिंक हो गया, राइट? यहाँ तक क्लियर है? बोल्ड हो गया, ये वो इटैलिक हो गया ऊपर वाला। स्क्रीनशॉट ले सकते हो कंपैरिजन के लिए, ठीक है? अब लार्ज को ज्यादा लार्ज हो गया, तो मैं इसको अगेन थोड़ा सा छोटा ही कर देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। और कलर अगेन आपको कुछ बदलना है तो बदल लो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है? तो पॉइंट मैंने से बताया था, एग्जिस्टिंग कोड बेसिस उठाओ, आप खुद भी उठा सकते हो, नेट पे जाओ, एग्जिस्टिंग कोड बेसिस मिल जाएंगे। और उसमें थोड़ा खेल बदेल करो, कहने का पॉइंट है, उसमें एक लर्निंग हो जाएगी। फिर चीजें खुद से ट्राई करके यू कैन इंप्लीमेंट योर ओन, ठीक है? पॉइंट ये है, इट्स अ गुड वे टू लर्न, ठीक है? फिर से बिल्ड कर। लोग अब आ रहे हैं, सेशन खत्म हो रहा है क्या? अच्छा। तो हाँ देखो, अभी ये देखो येलो हो गया। और अब मैं एक्सप्लेन करूंगा ये कैसे अप्लाई हो रहा है, पर दिख रहा है इम्पैक्ट आ रहा है, मतलब वर्क कर रही है चीजें। अब देखो क्या हो रहा है यहाँ पे मॉडिफायर, ये वैल्यू मॉडिफायर का एग्जांपल लो। ये वैल्यू मॉडिफायर कॉपी करो, देखो कहाँ यूज हो रहा है। ये यहाँ यूज हो रहा है सर। तो ये क्या हो रहा है, एक एक्सटेंशन में मैंने एक मेथड बनाया हुआ है, ठीक है? व्यू का एक्सटेंशन में, क्यों व्यू के इस पे बनाया वो भी मैं आऊंगा बाद में। और अभी के लिए जैसे हम एक्सटेंशन तो बनाते ही थे ना यूआई किट में भी, अपने यूआई टेबल व्यू, यूआई व्यू, यूआई आपका बटन कुछ भी ले लो, उसमें आपको कुछ एडिशनल फंक्शनलिटी डालनी है तो आप उसका एक्सटेंशन बना के उसमें डाल देते हो, राइट? वैसे ही किया काइंड ऑफ, ऐसा समझो, ठीक है? तो अभी इस व्यू मैं चाहता हूँ कि जो भी मेरा व्यू कंपोनेंट है उस पर मैं ये अप्लाई कर सकूँ फंक्शनलिटी। तो मैंने एक फंक्शन बनाया, इसको मैं कॉल करूंगा, मुझे रिटर्न करेगा ये व्यू। और ये व्यू में क्या होगा, ये व्यू में ये मॉडिफायर क्या करता है, ये मॉडिफायर अगेन जैसे बोला एक फंक्शन है, ये क्या करता है, ये जो भी अपन ने अभी कॉन्फ़िगर किया, ये सारा काम था, ये उस बॉडी पे, मतलब उस व्यू के बॉडी पे कह लो, उसको ये अप्लाई करके ये सारा दे देगा मुझे, कहने का पॉइंट ये, ठीक है? तो क्या हो रहा है, ये वैल्यू टाइटल अब देखो मैं कहाँ यूज कर रहा हूँ। लेट्स फाइंड दिस। ये देखो 6 बार यूज किया मैंने हर सेल के लिए। अभी ऑब्वियसली क्लीन कोड नहीं है, ये एक उतना ऑप्टिमाइज कोड नहीं है, बट कॉन्सेप्ट समझने का ट्राई करना। और ये मैंने जस्ट सिंपली पिक किया नेट से। पॉइंट क्या है, कॉन्सेप्ट समझने का ट्राई करो कि यहाँ पे आपका ये जो कोड है ना, ये इससे मैप्ड है, ठीक है? तो ये थोड़ा सा मैं आपको इधर दिखाना चाहूंगा, ये देखो। और इसको भी ना आप ये कर दो, ठीक है? तो पॉइंट ये है, ये जो फर्स्ट लाइन है आपकी, ये फर्स्ट लाइन तो इससे मैप्ड है, ठीक है? तो बंद करो, हाँ, ठीक है? तो पॉइंट क्या है, ये ब्रीड यहाँ से मैप्ड है, इसका इसका मॉडिफायर कॉल हो रहा है, वो ऊपर वाला मॉडिफायर में जो मॉडिफाई किया था। और ये वाला मॉडिफायर, इसमें देखो एसएफ सिंबल यूज कर रहे हैं, ये सिंबल वहीं से आ रहा है, जो आइकन आ रहा है उसमें नाम भी पास कर रहे हैं, जो पास कर रहे हो वो सिंबल यहाँ दिख रहे होंगे आपको। और उसके बाद मैंने इस पे अप्लाई किया है वैल्यू वैल्यू वाला अपना ये फंक्शन, जो कि इस पे फॉर्मेटिंग अप्लाई कर रहा है। और मैंने ये हर किसी के लिए कर दिया है, तो सबके लिए हो रहा है। मान लो किसी एक के लिए हटा देता हूँ तो नहीं होगा, एक का हटा देते हैं, देखो प्लेन का हटा देता हूँ, अब रन करो उसको, तो फ्लेम की फॉर्मेटिंग में ये अप्लाई नहीं होगा। लेट्स रन अगेन। अब देखना आप, वापस रन कर रहे हैं, वापस खोलो, ये देखो फ्लेम का मीडियम दिख रहा है, ये नहीं आया फॉर्मेट में, बाकी सबके आ रहे हैं जो भी वैल्यूज है। समझ पा रहे हो?
तो जिसको फॉर्मेटिंग देनी है सबको देनी है, इसको और ऑप्टिमाइज वे में लिख सकते हो, पर पॉइंट इसकी कॉन्सेप्ट समझ पा रहे हो? जिसको जो मॉडिफायर लगाना है, जिसको मुझे जो फॉर्मेटिंग स्टाइलिंग देनी है, मैं क्विकली अपना फंक्शन बना के अप्लाई कर सकता हूँ, मॉडिफायर्स का यूज कर सकता हूँ, करना भी मॉडिफायर। मान लो अगर मॉडिफायर यूज नहीं करते अभी के लिए, तो आपको हर इसके लिए जितनी भी टेक्स्ट और जिन पे फॉर्मेटिंग लग रही है उनके लिए ये कोड बार बार लिखना पड़ता काइंड ऑफ। ये जो चीज हो रही है, ये कोड, ये 4 लाइन और ये 4 लाइन, ये सबके लिए बार बार लिखनी पड़ती। समझ लो, 4 से 16, 16 लाइन 6 साल है तो 24 लाइन्स मुझे एक्स्ट्रा लिखनी पड़ती, जो कि मैंने एक बार में लिख के हटा दिया काम। तो आपको ऐसे ही चीजें करनी है और एक्सप्लोर करो और इजीली रिलेट कर लोगे, राइट? इतनी अंडरस्टैंडिंग तो है ही हमें। तो हाँ, गिट लिंक तो इसका नहीं है, बट मैं ये डाउनलोडेबल फाइल एज अ शेयर कर दूंगा आप लोगों को ग्रुप में, ठीक है? और एक गिट रेपो में अभी इवेंचुअली हम बनाएंगे, प्रोजेक्ट पे काम करेंगे, बट अभी के लिए मैं आपको डाउनलोडेबल शेयर कर दूंगा, ठीक है? तो क्लियर है यहाँ तक? अभी के लिए हम आज रैप अप कर सकते हैं, आई थिंक आज के लिए काफी है। और आपके कुछ क्वेश्चन, कोई कंसर्न है तो लेट मी नो। कई लोग पहली बार आए हैं तो क्विकली बता दूं, स्विफ्ट के कुछ सेशंस हमने एज अ फ्री डेमो रखे हैं, बाकी हम आगे डिस्कस करेंगे चीजों पे। और आपको जेन्युइनली स्विफ्ट सीखना है तो मैं जैसे बोला 2 से 3 हफ्ते में पूरा कवर हो जाएगा, और आपके जेन्युइन एक्टिव इन्वॉल्वमेंट और एफर्ट लगेंगे, ये भी ध्यान रखना। अगर आप लेते हो अपने एंड से तो चीजें वर्क करेंगी, नहीं लेते हो तो नहीं करेंगी, एज सिंपल एज दैट, ठीक है? तो अगर आप भी रेडी हो अपने लिए थोड़ा एफर्ट लेने के लिए, अपने करियर के लिए, अपनी लर्निंग के लिए, तो चीज सही है, दोनों के लिए, सबके लिए अच्छा है। नहीं हो तो कोई बात नहीं, ठीक है? तो ये आपके ऊपर है। और मैं मेक श्योर करना चाहूंगा कि हम लोग चीजें खुद से ट्राई करें, कॉन्फिडेंट हो जाए, और कॉन्सेप्चुअली में चीजें क्लियर हो। अभी आगे हम और कॉन्सेप्चुअली डेप्थ में जाएंगे, फिर इंटरव्यू क्वेश्चंस पे भी आएंगे, फिर मैसिंग का वेट कंबाइन, ये सब भी देखना है सॉफ्टवेयर के साथ साथ, ठीक है? फिर इतना कॉन्फिडेंस आ जाए कि कोई भी हमें अगर यू वी आई मिल जाए तो हम आराम से बोले कॉन्फिडेंटली कि हम कर देंगे इंप्लीमेंट बढ़िया से। ये कॉन्फिडेंस आ जाना चाहिए, जो आज हमारा नहीं है। आज कई लोगों ने 70% ऑडियंस आर नॉट दैट कॉन्फिडेंट, 70 to 80%। जितने 30 लोग थे उसमें से 25 लोगों ने आइदर 1 या 3 पे वोट किया है, राइट? मतलब या 1 या 5 पे किया, राइट? कॉन्फिडेंट नहीं है। तो वो कॉन्फिडेंस हमें सबका 8 पे लेकर आना है एटलीस्ट। 10 वाला तो मैं नहीं करूंगा कमिट, वो बहुत प्रो लेवल हो गया, उसमें टाइम लगेगा, ऑब्वियसली एक दिन में सब कुछ नहीं हो जाता। पर एटलीस्ट आप आराम से 8 के लेवल पे आ सकते हो। 8 का लेवल मतलब इतना कि बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर है, और कोई यूआई दे दिया, कुछ करने को बोल दिया सॉफ्टवेयर में, तो हाँ कर लेंगे भाई। ये कॉन्फिडेंस आ जाना चाहिए, ठीक है? चाहिए सबको ही कॉन्फिडेंस, राइट? हमको भी चाहिए, मुझे भी चाहिए, आपको भी, सब ठीक है। तो अक्नॉलेज कर सकते हो। और आपको असाइनमेंट ग्रुप पे शेयर होगा, तब तक के लिए फ्री टाइम में अपना चीज एक्सप्लोर करो। और ये कोड रेफरेंस के लिए मिल जाएगा, और वो डॉग भी मैं शेयर कर दूंगा, ठीक है? कूल। और जो लोग नए हैं, जिन्होंने एक्चुअली अपना फॉर्म वगैरह भरा नहीं होगा, गूगल फॉर्म हम भरवाते हैं बेसिक डिटेल्स के लिए, वो मैं शेयर करूंगा। प्लीज आप लोग वो फॉर्म भर दे दो, गूगल फॉर्म फॉर योर बेसिक डिटेल्स, सो दैट हमें कंटेक्स्ट रहता है कौन कहाँ से आया, क्या कंटेक्स्ट है, कितना एक्सपीरियंस है, और आप कितने किस टॉपिक में कितने कॉन्फिडेंट हो। उसमें एक सेल्फ रेटिंग होती है, उतना ही होता है बस उसमें, ठीक है? कूल। चलो मिलते हैं फिर ब्रेक के बाद। एंड थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय, गुड नाइट, ऑल द बेस्ट, थैंक यू। Thank you, Kushal. या थैंक्स। Thank you, Vaibhav. कुशल, हेलो।